vessel, but the lighting of a flame that guides generation forward. Today's session stands as the testimony to how education transcends classrooms and become a catalyst for innovation, entrepreneurship, and societal progress. At this meaningful juncture, we are privileged to be guided by eminent academicians and an accomplished industry expert whose collective wisdom enriches this platform. Great institutions rise not by walls or by buildings, but by visionary minds that shapes their direction. We now take this opportunity to respectfully acknowledge and introduce our esteemed dignitaries who have graciously joined us today. First and foremost, we extend our respectful greetings to Dr. Surender Kaur, Principal Officiating and President IIC, whose commendable leadership and academic excellence continue to steer the institutions toward innovation-driven growth. Her eminent support for research and institutional development remains an inspiration to all. We are equally honored to welcome Dr. Sunita Kaushik, Vice President IIC and Coordinator of Research and Development Cell, whose dedication to fostering research culture and intellectual inquiry has significantly strengthened the academic ecosystem of our college. Our sincere appreciation goes to Mrs. Vivek, Convener IIC, whose constant guidance, meticulous planning, and academic commitment plays a pivotal role in transforming ideas into impactful initiatives. I also acknowledge the valuable efforts of the program coordinators and innovation ambassadors, Dr. Manmeet Kaur and Mr. Harsh Sharma, whose coordinating and dedication have been instrumental in the seamless organization of today's session. I cordially welcome our faculty staff, our IIC Student Council, and our dear audience for their presence. Let us extend a warm round of applause for all our dignitaries for their presence and leadership, and of course for our dear audience. Some journeys are written not in pages, but in perseverance, purpose, and progress. Respected dignitaries and audience, today we are truly privileged to learn from a distinguished personality who exemplifies the perfect blend of innovation, entrepreneurship, and practical wisdom. It is an honor to introduce Mr. Subhash Kamboj, founder of Kamboj Honeybee Farm Private Limited, a visionary entrepreneur whose journey reflects perseverance, innovation, and sustainable business practices. He is a visionary agri-entrepreneur and a torch-bearer of scientific beekeeping from Yamunanagar, Haryana. His journey began in 1996 with just 6 bee boxes and a modest loan. Yet through resilience and innovation, he built an enterprise that today collaborates with thousands of bee colonies and beekeepers across the country. During challenges time, especially the COVID period, his venture witnessed remarkable growth, expanding into value-added honey products and diversified markets across India, producing multiple varieties of honey and supplying major health industries nationwide. His work stands as a model of sustainable entrepreneurship. His contributions have been acknowledged as the highest national forums, including repeated mentions by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on Mann Ki Baat and recognition as a Republic Day guest. Above all this, his commitment to training farmers and strengthening rural livelihoods reflect a vision where enterprise serves both economy and community. So audience, he truly deserves a thunderous round of applause from your side. Welcome to the premises, sir. And as a gesture of gratitude and respect, we now request our esteemed dignitaries to kindly felicitate our distinguished resource person with a token of appreciation and a planter, symbolizing not only our thankfulness, but also our belief in nurturing growth, sustainability, and knowledge for generations to come. Clapping must be continued, audience.
आओ नताशा, मोनिका साथ आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर नीचे से प्लीज। हाँ इसको लाओ सर, ये हमारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो आपको दिखाने के लिए भी और आपके लिए है, एंड ये ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। हमारी तरफ से Thank you, sir. Thank you so much. And before diving right into our session, I humbly request our principal ma'am to please be on dais and address the audience. Please give a big round of applause for this. Good morning, girls. Good morning. आज आपके लिए बड़ा एक सुनहरा मौका है, एक ऐसे पर्सन से मिलने के लिए जो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ से सेलिब्रिटी बन गए। आपके सामने सुभाष कंबोज जी बैठे हैं, एक आम इंसान, एक आम विद्यार्थी जिसने अपनी पढ़ाई और उसके बाद एक नौकरी शुरू की अध्यापक के रूप में, लेकिन धीरे धीरे करते करते लगन कुछ और थी कि कुछ उससे बहुत बड़ा करना है, और सर ने हनी बीज को पालना शुरू किया, शहद इकट्ठा करना शुरू किया, और आज इस लिमिट तक, इस बुलंदी को छू गए कि राष्ट्रपति जी से सम्मान मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी इनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, बाकी के फार्मर्स को, बाकी के एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया जा रहा है कि जैसा इन्होंने जीवन में उदाहरण बनाया है, लोग बाकी भी इनकी राह पर चलें। आज का सर को एज गेस्ट अपने पास बुलाने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि खाली किताबों की दुनिया से कुछ नहीं हम सीख पाएंगे जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स को स्टडी नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं इनके बारे में। एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आज के समय में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हम बार बार एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और अगर इसका एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार कर दिया जाए तो मुझे लगता है सर ने ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में उतार लिया है। पढ़ाई भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, और जो हमारी मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, पेटेंट्स की बात करते हैं, तो सर कहीं भी पीछे नहीं है। अपना ब्रांड भी बनाया। एक सिंपल एजुकेशन के बाद एक टीचर कब एंटरप्रेन्योर बन गया, मुझे लगता है सर की जर्नी बड़ी चैलेंजिंग रही, लेकिन आज उन्होंने उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मुझे लगता है जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था इनसे मिलना चाहेगी, इनको बुलाना चाहेगी, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक आम इंसान को कैसे भी बुला लिया। He has special recognition in society. समाज में लोग इनको बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि सर ने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और आप बच्चों से बात करने के लिए आए हैं। हम सर से 2 से 3 बार मिले हैं इसी मीटिंग को फिक्स करने के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स को आप एड्रेस करिए, एंड आई कैन टेल यू कि जितनी बार भी सर से मिले 2 या 3 घंटे बात करते हुए कब निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। He is such an interesting personality. इनके पास इतना नॉलेज का भंडार है कि मुझे लगता है जितनी बार इनसे बात करें हम बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं। एक बुलंदियों पे काम करने वाला इंसान, लेकिन व्यवहार में बहुत ही साधारण व्यक्ति, जिनसे मिलना बहुत आसान है, जिनसे बात करना बहुत आसान है। इसका मतलब हम सब में जो सीखने वाली बात है वो ये कि हम सब में हम कुछ भी नहीं होते और हमारी ईगो हमसे 4 गुना बड़ी रहती है। ये बहुत कुछ है, लेकिन मिलते हुए बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह मिलते हैं, तो ये इनका बड़प्पन है, इनसे सीखने की जरूरत है। और जो भी सर बातें यहाँ पे कहें उनको ध्यान से सुनिएगा और ये कोशिश करिएगा समझने की। और एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि सिंपल लाइफ से बिल्कुल एक सेलिब्रिटी कैसे बना जा सकता है। जब सर आपसे बात करनी शुरू करेंगे तो आप खुद ही फैसिनेट होने शुरू हो जाएंगे।
हम जितनी बार मिलते हैं उतनी बार प्रभावित होते हैं और 2 दिन तक सर की बात करते रहते हैं। हम किसी से भी मिलने के बाद जितने लंबे समय तक उनकी बात करते हैं, इसका मतलब उनका इफेक्ट आता है हम पे, हम इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप बच्चे भी इन्फ्लुएंस होंगे और देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे सीखते गए। और मैं हैरान होती हूँ सर से बात करके कि इतना सब कैसे सीख गए ये। और उसके पीछे कारण है कि लगन, लगातार चलते रहना, लगन से काम करना, एक जुनून की तरह से काम करना। तो जब आप सर को सुनेंगे तो वाकई आप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और हमारी लगातार कोशिश है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स करें, आपको ऐसी पर्सनालिटीज से मिलाएं ताकि आप भी अपने लिए कोई उदाहरण ढूंढ पाएं। हम अपनी लाइफ में सफल तभी हो सकते हैं जब हमारे सामने कोई रोल मॉडल हो। तो हम बार बार ऐसी पर्सनालिटीज को आपसे इसीलिए मिलाते हैं, कोई पता नहीं कौन किसका रोल मॉडल किस दिन बन जाए और आप भी अपनी जो फ्यूचर की लाइफ है उसके लिए एक अच्छा रास्ता चुन पाएं, आप आगे बढ़ पाएं। और कभी कभी हताश भी हों तो ऐसे लोगों से मिलके आपको फिर से प्रेरणा मिले कि थकने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। उम्मीद करें, लगन के साथ काम करें तो हो ही नहीं सकता कि ईश्वर आपको आशीर्वाद ना दे और आप सफल ना हो। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मैं मरियम को डायस देती हूँ ताकि मैं ज्यादा समय ना लगाऊं और हम सर की ज्यादा से ज्यादा बात सुन पाएं। इसके साथ ही मुबारकबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल को कि इन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम डिवाइस किया है, इतना बढ़िया प्रोग्राम तैयार किया और आज बच्चों को एक नई चीज देखने को सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. When experience speaks, wisdom listen, and when wisdom speaks, future change. I think these lines perfectly suits on him, and I'm sure after hearing a little bit of his personality, you too are curious to listen him or interact with him. So without further ado, I take immense pleasure in inviting Mr. Subhash Kamboj to kindly address the gathering and enlighten us with valuable insight. The stage is all yours, sir. Thank you so much. और यहाँ आने से पहले तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारी बड़ी गैदरिंग होगी, बोलने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म जितने मिलते हैं तो बहुत बड़े बड़े भी मिलते हैं। शॉर्टकट में अपने बारे में बता देता हूँ। लोग मुझे सुभाष काम्बोज बोलते हैं और एक अपना छोटा सा गांव है हाफिजपुर दामला के पास। और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। पिताजी ने खेती की सारी जिंदगी और हमने भी आज भी खेती की है। बहुत छोटे से स्तर से शुरू हुए हैं और मैं अपनी जर्नी तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, शॉर्टकट में बतला देता हूँ कि मैंने खूब एजुकेशन ली। जब स्टडी का टाइम था खूब स्टडी की, ग्रेजुएशन किया, BPE की 3 साल की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। DYED किया, डिप्लोमा इन योगा। और अब तो यहाँ तक कि जो रिपब्लिक डे पे जो 26 जनवरी की परेड होती है वो 92 में वो भी मैंने की है राष्ट्रपति के सामने। और फिर मैं एक 1500 रुपये महीने की नौकरी पे टीचर लगा। लेकिन लाइफ कहाँ मोड़ खा जाए किसी को मालूम नहीं होता। वैसे तो मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, सभी के मन में। क्योंकि अभी ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, अभी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि जो यंगेस्ट होते हैं उनको क्या फेस होता है, मान लो स्टार्टिंग में उनको क्या लगता है। और हमें भी वही लगता था कि हमारा फ्यूचर क्या है, कहाँ जाएंगे हम, क्या करें हम। तो हमारे भी मन में वही रहती थी। और जब हम पढ़ते थे तो यही सोचते थे कि नौकरी, दिमाग में नौकरी, है ना, और भी वो नौकरी करेंगे
ये जरूर दिमाग में था कि वो नौकरी करे जिसमें ईमानदारी हो, ताकि मेरे घर में जो पैसा आए वो ईमानदारी का आए। मुझे नहीं चाहिए किसी तरह की करप्शन, बेईमानी का पैसा। तो क्या बने भाई, फौजी बन जाते हैं। चलो, अच्छी हाइट थी, अच्छी फिजिकल फिटनेस थी, दौड़ लगाने में तो मैं माहिर था, पीछे छोड़ देता था, स्टेट में भी नहीं था कोई लंबी दौड़ का। लेकिन हुआ क्या है कि मैंने ये अपने खेतों में मधुमक्खियां रख ली, और आज से ना आप लोगों का भी नजरिया चेंज हो जाएगा। किसके प्रति? मधुमक्खियों के प्रति, शहद के प्रति, और अपने लिए भी। आज से आप लोग भी खुद अपने लिए भी सोच बैठोगे कि वास्तव में क्या ऐसा पॉसिबल है? और है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैसे टफ है होता है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। तो दोस्त था एक मेरा, उसने ऐसे ही मधुमक्खियां रखता था। ये बात है ये बात है 19 के आसपास की। अब हम लोग कॉलेज में, मुकंदलाल कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। हम लोग यहाँ से, उस टाइम मोबाइल का ज़माना तो नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं थे, तो हम साइकिल से आते थे, गांव से साइकिल से ही जाते थे। और वो उसने मधुमक्खियों के 10-12 बॉक्स अपने खेतों में ऐसे ही रखे हुए थे घर से बाहर। और मैं कई दफ़ा बोल देता था उसको कि ये मुझे भी दे दे एक मधुमक्खी का बॉक्स, है ना। उसको मना कर देता था, क्या करेगा, शायद खाना मेरे से ले लेना। उसने दिया नहीं। और हम यहाँ से जो है ना, फिर कहीं ग्रेजुएशन करने के बाद फिर फिजिकल एजुकेशन करने चले गए। लेकिन जब आए 95 में, तो फिर मन में आई कि अपने दोस्त को मिलने जा, क्योंकि असल में उस टाइम दोस्ती, आज की दोस्ती में बड़ा फर्क था कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, दोस्त अपने मोबाइल में है। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम तो मिलने के लिए स्पेशल प्लान बनाना पड़ता था कि सुबह सुबह पकड़ो जा करके उसको। किसी को भी मिलना है तो सुबह सुबह जाएंगे घर, तभी मिलेगा, क्या मालूम निकल जाए, है ना। तो फिर बीच में स्टडी के दौरान जो है ना 3 साल बाहर रहे, तो जाना नहीं होता था, 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। लेकिन 95 में मैं पूरी अपनी डिग्री करके आ गया, तो तब मैं उसको मिलने गया, तो मालूम चला तो 1.5 साल हो गया, उसने तो अमेरिका चले गया। तो उसके भाई को बोला मैंने कि यार तुम मेरे को ये 5 मधुमक्खी के बॉक्स दे दो, अपने खेतों में रख लेंगे। असल में सिर्फ शहद खाने के पर्पस। मुझे शहद उस टाइम भी अच्छा लगता था, इनको छेड़ना मधुमक्खियों को। मेरे खेतों में मधुमक्खियां लगी होती रहती थी, और उनको बैठ करके आराम से शहद खा लेता था मैं, बैठ करके। कुछ भी नहीं, है ना, उनसे यानी वो डंक भी नहीं मारने देता था। असल में कोई भी जीव है, चाहे अगर आप उसको प्यार से हैंडल करोगे तो वो भी आपको कुछ नहीं करता। तो यही मेथड हमारा भी है मधुमक्खियों के साथ। वो कुछ नहीं, हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है, कुछ नहीं आता। उसने, उसके भाई ने जो है ना मुझे 5 की जगह 6 दे दिया, बोले 5500 रुपये दे दे और 6 ले जा। और हमने 6 मधुमक्खी के बॉक्स अपने खेतों में रख लिए। अब वो 6 मधुमक्खी के बॉक्स पहले साल, यानी 1 साल का जो सर्कल होता है, असल में इनका ऑक्सीजन का पीरियड भी आता है, जब कुछ कोई फ्लोरा नहीं होता, बरसात का मौसम आता है, जब मानसून का मौसम, कोई फ्लोरा नहीं होता, गर्मी का मौसम आता है, तो उस दौरान ऑफ-सीजन बोलते हैं हम उसको। तो उस दौरान जो है ना, इनको यानी कि कंट्रोल करना कह लीजिए, या कोई हनी उस टाइम कलेक्शन नहीं होती। अब वो जो फिर पूरे 9-10 महीने का पीरियड होता है,
उस दौरान मैं मधुमक्खियां मेरी डबल भी हो गई पहले साल, और मुझे जो मैंने 5500 रुपये लगाए थे वो 6600 6500 6600 रुपये का शहद मेरा बिक गया। 18 रुपये सारा किलो शहद गया होलसेल में, जितना भी वो निकले था वो सारा ले गया, और उसने 18 रुपये किलो के साथ कीमत दी। अगले साल फिर वही डबल मेरी मधुमक्खियां थी और डबल फिर हो गई, और फिर वहां से एक तो मेरा नजरिया चेंज हो गया उनके प्रति। दूसरा, जब मैं उनके साथ 2 साल हो गए थे एक तरह के, तो मैंने उनको काम करते हुए देख लिया मधुमक्खियों को। और आज से आपको भी ज्यादा लंबी नहीं, शॉर्टकट में मधुमक्खियों के बारे में बतलाऊंगा, और सोचोगे आप कि वास्तव में हमारी लाइफ तो कुछ भी नहीं है, हम तो कहीं भी नहीं है। इंसान तो सही मायनों में परमात्मा ने दिमाग जरूर एक्स्ट्रा दे दिया है, लेकिन अगर हम खाने के ऊपर आए और डिसिप्लिन के ऊपर आए तो हम मधुमक्खियों से बहुत पीछे हैं, कहीं भी नहीं ठहरते उनके आगे। तो जो लाइफ डिसिप्लिन में वो जीती हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब वो मैं सीखता गया उनसे। मैं स्कूल में जाता था साइकिल पे मुस्ताबाद, वहां से आना, आते ही खेत में जाना, जहां मधुमक्खियां थी वहां पे जरूर जाना। इतना जुनून हो गया उनके लिए, उनके काम के प्रति, कि मुझे अब और काम में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, ना मुझे कुछ ऐसा बिल्कुल एक दिन भी नहीं रहा जाता था कि उनको ना देखने जाए। अगर कई दफा मान लो 5-4 दिन के लिए बाहर चले भी गए तो बाहर से आकर के कपड़े चेंज बाद में करना, पहले उनको देखने जाना। ऐसा मधुमक्खियों के लिए मेरे अंदर एक प्यार हो गया उनके लिए। अब स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, इनकम कुछ नहीं दिखती और घर वालों को भी नहीं दिखती थी क्या है, 6000 रुपये, 7000 रुपये, 10,000 रुपये, 2-3 साल तक इसी तरह। लेकिन मैंने ये चीज नोट कर ली कि इनके अगर मैं इस काम को लार्ज स्केल में लेके जाऊं तो इनसे मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन वो तो मैंने देख लिया था ना, हमारे घर वालों ने तो नहीं देखा था कुछ भी। उनको तो बस ये लगता था ये तो पागल है, ये नहीं करेगा कुछ भी, है ना। स्कूल से आता है, 12 पे चला जाता है ना, वहां जाकर के उनके पास ही बैठा रहता है, मधुमक्खी के पास ही। लेकिन मैंने उनका काम देख लिया कि वो तो एक बार मैंने बोले जी ये तो सोती ही नहीं है, एक अखबार में पढ़ने को मिल गया मुझे, तो मैंने उनको रात को भी देखना शुरू कर दिया। मैं रात को भी जो है ना उनके पास, एक बार मैंने बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो पोल्यूशन हो गया, उस टाइम तो 98 के आसपास तो इतना पोल्यूशन नहीं था, बढ़िया एकदम चांद का चांदना, पूरा पूर्णिमा की रात थी, पूरा चांदन थी। मैंने देखा कि मधुमक्खियां बॉक्स से निकल रही हैं, उड़ती हैं, फिर वापस आ रही हैं। यानी कि उनको रोशनी दिखती है, लेकिन कुछ ऊंचाई पे जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। इट मीन्स वास्तव में ये तो रात को भी नहीं सोती। मैंने उनको जज किया, वो तो रात को भी लगी है, पंखों से हवा कर रही है, है ना, अब लगी हुई है। हम शाम को अगर पहले दिन कोई जो काम देखते थे तो हमें और सुबह के टाइम अगले दिन काम उनका और बड़ा हुआ दिखता था। नया छत्ता बना लिया उन्होंने, जो मोम था वो और बढ़ा लिया, शहद था उसको गाढ़ा कर दिया, पानी बाहर मिलता था मॉइस्चर वाला, बहुत सारे चीजें नोट करते थे। इट मीन्स हमने ये नोट किया कि मधुमक्खियां तो ये तो दिन रात काम कर रही हैं और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब ये नहीं सोती तो हम कैसे सो रहे हैं भाई? हमें भी तो फिर, है ना, काम इतनी इसी स्पीड से, जितनी स्पीड से वो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें काम करना चाहिए। बस वो मन में ठान ली। और जब मैंने एक अपने पिताजी को बोला 2 साल के बाद कि मेरे पास जब ये 50 हो जाएंगे मैं तो इनको लेकर के राजस्थान जाऊंगा, और पिताजी ने मना कर दिया कि ये तो यहीं तेरे को शहद दे रही है, क्या करेगा राजस्थान ले जाके इनको। लेकिन मुझे मालूम चले था कि ये
प्रोफेशनल अगर इसमें होना है तो हमें इनको माइग्रेट करना जरूरी है, यानी सीजन के हिसाब से इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत जरूरी है। असल में आज आप लोग जो है एक यहां से एक मेरे जीवन पे से एक प्रेरणा लेकर के जरूर जाना कि लाइफ में याद रखना, जिंदगी में कोई प्यारा नहीं है। अगर प्यारा है तो काम है। जिंदगी में याद रखना हमेशा, आप कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा मधुमक्खियां ही काम करना, आप शहद में ही काम करना, नहीं, कोई भी काम करना। और खासकर मैं तो ये कहूंगा एंटरप्रेन्योर बनना, नौकरी के पीछे मत भागना। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल खड़ा हूं कि नौकरी छोड़ करके मैंने फिर ये स्टार्ट किया जो आज इस लेवल पे हूं। तो मैंने जब मेरे पास 4 साल बाद वो लगभग 60 के करीब हो गए, मैं नहीं रुका। और किस्मत कह लीजिए कि जब आपके अंदर जुनून होगा किसी के प्रति तो आप सक्सेस भी होंगे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी काम में सक्सेस ना हो। बस उस काम के प्रति आपके अंदर जुनून होना बहुत जरूरी है। इतना जुनून होना चाहिए कि आप भूल जाओ कोई और दूसरा आपका रिश्तेदार, जान पहचान वाला यार दोस्त क्या कहेगा आपको, कुछ नहीं कहेगा। जब आपके नाम होगा, आपके पास पैसा होगा तो सब आपके होंगे। और अब जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप बिल्कुल सब साथ छोड़ जाएंगे, याद रखना हमेशा। तो मैंने परवाह नहीं की किसी की भी, और मैं लेके निकल गया। किस्मत मेरी अच्छी थी, मैंने पहले साल ही बहुत अच्छा शहद, मेरे को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मेरे को बहुत अच्छा शहद मिल गया। और रेट भी उस साल ना ठीक था। और पहला साल ही, अगर एक किसान परिवार में, ये बात है 2001 की, अगर लगभग 5 लाख रुपये पहले साल ही घर वालों को अगर एक साथ मिल जाए तो घर वाले फिर मना नहीं करेंगे, कहीं भी जाओ भाई, फिर तो कहीं भी लेके जाए इनको, हमें तो पैसे चाहिए, है ना। और उस टाइम बहुत थे 5 लाख रुपया। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा, मैं भी नहीं आया। मेरी दादी मुझे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, वो जरूर रोकती थी, है ना वही। और मैं कहीं कहीं मिलने नहीं आता था, जंगलों में रहना, जंगलों में, क्योंकि वहीं पे तंबू लगा लेना, है ना। चाहे कितना भी घना जंगल है, चाहे खेत है, कहीं भी है, पानी की सुविधा भी नहीं है, पानी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते थे हम। और एक बात तो एक एग्जाम्पल है, एक राजस्थान के एरिया का, कि हमें जब नहीं कोई और ऐसी जगह मिली कि वहां से 10-12 किलोमीटर दूर पानी था और पास में एक नहर चलती थी। वो नहर का पानी हम लोग उसी को यूज करते थे, पीने के लिए उसको उबाल लेते थे, और खाना बनाने के लिए भी उसी नहर का ही पानी, चलती हुई नहर का पानी इस्तेमाल करते थे। ये लाइफ जी है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है, बड़ा बनना है, ये करना है, ना। खुद ही वो परमात्मा सब देता चला गया, टाइम टू टाइम सब मिलता चला गया। ये तभी पॉसिबल था जब अंदर काम करने का जुनून था। हमें तो सिर्फ काम प्यारा था, बाकी कोई भी मुझे प्यारा नहीं था। मैं गुमनाम की जिंदगी में जिया हूं, मैं ना मुझे कोई जानता था, है ना। मेरे गांव के ही नहीं मुझे, है ना, जो नए बच्चे आके आए थे वही उन्होंने पहचानना मना कर दिया था। ठीक है, आज नाम है, आज बहुत दुनिया जानती है, लेकिन
याद रखना कि जिंदगी में ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हम खूब मेहनत करें। आपका नाम होगा, बहुत होगा, और आप जरूर सक्सेस होंगे। तो मैंने ये फिर असल में जब मैंने ये शहद के रेट असल में, क्योंकि आप लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं जो सामने, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या है। असल में हुआ क्या, ये हमारा जो एज इट इज जो शहद होता था वो मैडम इसके थोड़ा एसी या कुछ है, वेंटिलेशन एसी होता है। हाँ वेंटिलेशन हाँ जी, हाँ जी। तो हम ना अपना शहद एज इट इज जहाँ भी होते थे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, एज इट इज वैसे ही बेच देते थे उसको। हम उसको बिल्कुल भी कोई उसकी वैल्यूडेशन नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्टर नहीं करते थे, कुछ नहीं, एज इट इज बेच देना। अब फिर वो असल में हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी, उतनी कीमत नहीं मिलती थी जो हमें वास्तव में चाहिए होती थी। अब धीरे धीरे मैंने स्लोली, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही मैंने ये सोच लिया कि आज ही मैं एक्सपोर्टर बन जाऊं, आज ही मैं एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा बन जाऊं। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। और आप लोग भी कभी भी कोई भी छोटा काम करे, पहली बात तो किसी भी काम को छोटा ना समझे, दिमाग में बिठा लो, कोई काम छोटा नहीं होता। अगर मान लो मैं खुद ये सोच करके कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, माल पड़ू, है ना, मान लो ये क्या कहें, मैं ये सोच बैठता भी क्या कहेंगे मेरे रिश्तेदार, भी माल पाड़ता है ना। मैंने तो नहीं सोचा, नहीं, कभी किसी काम को छोटा मत समझो। आप लोग भी कोई भी काम करोगे, यहां से जाने के बाद किसी भी काम को पकड़ो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि उसकी उसमें जो नॉलेज ले ली ना अपने 2-3 साल में, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक काम आएगी। और कई मैंने ऐसे देखे हैं कि वो 2-4 साल करते हैं, उस काम को छोड़ के दूसरा नया काम पकड़ लेते हैं, फिर वो जो उन्होंने सीखा था वो खत्म हो गया, जीरो हो गया, नए काम को पकड़ते हैं, फिर उसमें फेल, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं। किसी भी काम को याद रखना, यहां से किसी भी काम को छोटा नहीं समझना, कोई छोटा नहीं होता। और किसी भी काम को अंदर जाना है तो जुनून के साथ जाना है। यानी जुनून कब बोलते हैं असल में, कि एक होता है किसी भी काम को मतलब प्यारा लगना, और वो तभी पॉसिबल होता है जब हमें उसे आनंद आता है। जब हम किसी काम को करते हैं हमें आनंद मिलता है, उसमें खुशी मिलती है, चाहे हमें पैसे मिल रहे हैं या ना मिल रहे हैं, लेकिन खुशी मिल रही है तो पैसे भी मिलते हैं। तो हमें जब किसी काम को करने में आनंद आता है तो समझो उसमें आप उस काम को प्यार कर रहे हैं, उसमें जुनून पैदा हो रहा है। और फिर उसको इतना उस पर ले जाओ, धीरे धीरे स्लोली लार्ज स्केल में, बड़े स्तर पे लेके जाओ। अगर कोई आप नया खुद का काम बिजनेस या कर रहे हैं, उसको बड़े स्तर पे लेके जाओ। छोटे स्तर पे रखोगे तो वो आपको ऐसा फील होएगा कि मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है, मुझे ही काम करना पड़ रहा है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़े स्तर पे हो जाएगा तो आपको अलग से सोच हो जाएगी, फिर आपकी सोच चेंज होएगी। आप मुझे ये करना चाहिए, जैसे मैंने किया। फिर क्या किया मैंने कि मैंने फिर खुद की मार्केटिंग शुरू की। 2007-8 के आसपास की बात है, जब हमने ये नोटिस किया कि हमारे शहद की वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है हम। हनी जो है मोस्टली एक्सपोर्ट हो जाता है। हम इंडिया के लोग शहद को एज ए मेडिसिन के रूप में देखते हैं, जबकि शहद मेडिसिन बाद में है, ये पहले फूड है, सुपर फूड। तो हमने
उसमें वैल्यू यानी कि उसकी मार्केटिंग शुरू की। जिसको मैडम जिसको तकलीफ है ना, उठा के बाहर निकाल दो। मैं इस मामले में सख्त हूं, सच में। मैं टीचर रहा हूं, बहुत सख्त रहा, इस मामले में सख्त हूं। बैठना है, इंटरेस्ट लेना तो लो, अगर नहीं है नो प्रॉब्लम। हमें तो एक ही लड़की चाहिए। मैं आज मेरा यहाँ जो बोलने आया हूं, मैं ये सोच के नहीं आया कि 100% मेरे जैसे हो जाए। मैं तो ये सोच के कि अगर एक भी मेरे बोलने से आगे निकल जाए, अपना नया रास्ता चुन ले, तो बस मेरा यहां बोलने का मकसद पूरा हो गया। नया रास्ता, अरे भाई बड़े बड़े रास्ते पे मत चलना, अपना नया रास्ता चुनो, आपकी लाइफ अलग ही आएगी। दुनिया चलती है बड़े बड़े रास्ते पे, तो नए रास्ते पे मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन आपकी लाइफ अलग मिलेगी आपको बाद में। याद रखना, जिंदगी में 3 स्टेज आती हैं। यंग मतलब जब स्टडी का टाइम होता है, अगर 3 स्टेज आती हैं, किसी भी एक स्टेज में आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी अगर आपने नेक्स्ट स्टेज को सही तरीके से जीना है। या तो आप स्टडी के टाइम पे अपने आप को इतनी तकलीफ में यानी इतने हार्ड वर्क में डाल दो कि अगली जो 2 स्टेज आएंगी उसमें आपको आराम मिल जाए जिंदगी में। एक आती है स्टडी यानी लगभग 30 साल तक की उम्र, एक आती है फिर 30 से 60 साल तक की उम्र, और एक आती है फिर बुढ़ापा 60 के बाद। अगर आपने पहली 2 स्टेज मौज मस्ती में गंवा दी तो बुढ़ापे में तकलीफ आएगी। बुढ़ापा फिर आपका ठीक नहीं है। अगर आपने स्टडी के टाइम पे अपने आप को तकलीफ दे दी तो आपके 2 स्टेज बहुत अच्छी लगेगी आपको, और जिंदगी जीने का नजरिया ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए यह जो स्टेज चल रही है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही संभाल लो। इस भूल जाओ, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। मैंने पहले भी बता दी आपको बात। ये सब आपके बाद में सब मिलेंगे आपको, अगली जो स्टेज आएंगे ना वो उसमें सब मिलेंगे, बहुत मिलेंगे फिर। इसलिए इस स्टेज में मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो। लड़के हैं आप तो 2 परिवार हो, एक नहीं हो 2, आपको 2 परिवार मिलेंगे। इसलिए आप लोग 2 परिवारों को संभालोगे। ये स्टेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी सीख के जाओ, मधुमक्खियों से सीखो, मेरे से नहीं, मधुमक्खियों से सिखाऊंगा भी, मधुमक्खियों से सीखो। मैं कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया, मैं एक आप लोगों को प्रेरणा देने आया हूँ, आप लोगों का एक नजरिया चेंज करना, ताकि आप लोगों को एक प्रेरणा मिले। अब मैंने फिर क्या किया, इनको शहद को, इनके अलग अलग फूलों को, क्योंकि असल में शहद हम सब जितने भी हैं मार्केट में जाएंगे तो एक ही जैसा शहद दिखता है, और हमने भी सबने यही सोचा हुआ शहद मतलब एक, पॉसिबल ही नहीं है, भी अलग भी होता है क्या शहद, कोई डार्क कलर का, कोई लाइट कलर का, ऐसा कोई स्वाद में हल्का कसाला कड़वा, थोड़ा हल्का तीखा, कोई ज्यादा मीठा, लेकिन वास्तव में होते हैं इसी तरह। हमने फिर इनकी ब्रांडिंग, इनका मार्केटिंग शुरू की। शुरू में मुझे होलसेल में ही मार्केटिंग शुरू की, यानी कि पैकिंग नहीं की,
फिर धीरे धीरे उसमें भी जब चेंज आया 2018-19 के आसपास की बात है कि मैं इसी तरह जैसे यहाँ मैडम ने मुझे बुलाया और IIT काशीपुर है, वहाँ मुझे इसी तरह लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। तो वहाँ के जो CEO थे उन्होंने मुझे फिर शिक्षा दी कि आप अपना ब्रांड नेम बनाओ। और मैंने फिर उन्हीं को बोल दिया, सर आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के वो हो तो आप ही मुझे सजेशन करो कोई ब्रांड नेम, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता। तो देखो इतने बड़े उसके इंस्टीट्यूट के CEO ने ही मुझे 1 मंथ के बाद उसने भी अपने स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई बहुत सारों की कि कोई ब्रांड नेम सजेशन दो, है ना। और उन्होंने फिर CEO ने ही मुझे बताया कि ये नाम रखो, हेमोग्लोबिन, यानी कि हानि जो है ना एक होमोग्लोबिन होता है, यानी एक ब्लड होता है और है भी हकीकत। शहद के बारे में आप लोगों को ये बतलाऊंगा मैं। शहद वास्तव में एक खून है। कोई भी चीज आप खाते हो, रोटी खाई, गेहूं की खाई 4-5 घंटे लगेंगे पचने में, चावल खाए 2 घंटे लगेंगे पचने में, दाल खाई तो 5 घंटे लगेंगे पचने में। पचने का मतलब क्या होता है? असल में जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन हमारी आंतों में जाता है, वहाँ वो कन्वर्ट होता है फिर, है ना। पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट, है ना, तो वो फिर वहाँ से ग्लूकोज जाता है फिर हमारे, है ना, ब्लड में, वो ब्लड बनता है, फिर ऑक्सीजन मिलती है उसके अंदर, ऑक्सीजन से फिर वो ब्लड में कन्वर्ट होता है। लेकिन शहद ऐसी चीज है जो सिर्फ 20 मिनट में ब्लड बन जाता है। यानी हमने अब खाया 1 चम्मच तो 20 मिनट के बाद वो ब्लड के रूप में होता है तैयार किए, चाहे ये विनेगर है चाहे मुरब्बे हैं, शहद में ही हमने ये सब बना रखे हैं। और बहुत सारे ये सोचते हैं शहद एक सिर्फ गर्म होता है, ये तो सर्दियाँ आई तो उस टाइम खा लिया, और है ना, तो और गर्मी आई तो छोड़ दिया। असल में शहद जो है वो उसकी तासीर चेंज होती है। शहद एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो अपनी तासीर चेंज करता है, लेकिन इसको किस रूप में खाना है, कैसे खाना है, वो डिपेंड करता है। अगर हमने इसको डायरेक्ट खाया तो ये गर्म है, चाय कॉफी में पी रहे तो और ज़्यादा गर्म है। लेकिन अगर हम इसको जूस में शिकंजी बना करके और दूध में इस तरह पी रहे हैं तो ये ठंडी तासीर को होता है। गर्मियाँ आती है तो इसकी तासीर ठंडी लेनी है तो इसको आपको जूस में या शिकंजी शरबत बना करके पीना पड़ेगा, तो ये ठंडी तासीर का है। और इतना एनर्जीफुल है शहद, जिसके साथ मिल जाता है उसकी पावर को डबल कर देता है। यानी कि हमने अगर दूध में पिया तो दूध की पावर को डबल कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो 1-2 नहीं है। आप लोग भी हैरान रह जाओगे सुन के। सुनो, हम लोग सुबह उठते हैं, क्या नियम खाते, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई वेज खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, दोपहर को भी फिर कोई दाल के साथ रोटी खा रहा है, हरी सब्जियों के साथ रोटी खा रहे हैं, कोई बाजरे की रोटी खा रहा है, कोई मक्की की रोटी खा रहा है, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, जौ की रोटी, चेंज कर करके खा रहे हैं हम। शाम को डिनर या दिन में ड्राई फ्रूट चेंज कर करके खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं अभी चेंज करके? ताकि हमारा जो शरीर है इसको हष्ट पुष्ट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाएं। टोटल 84 न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जिसमें चिकनाई भी है। हमारे शरीर को चिकनाई की भी जरूरत पड़ती है, चाहे हम उसको किसी भी रूप में लें, चाहे देसी घी के रूप में ले या तेल के रूप में ले, किसी भी रूप में ले, चिकनाई की जरूरत भी है।
ये टोटल 84 हैं। और शहद अकेला ऐसा पदार्थ है इस पृथ्वी पे जिसमें अकेले में 83 है, इसमें चिकनाई नहीं है, तभी इसको अमृत बोला गया है। शास्त्रों के अंदर शहद को अमृत बोल दिया। क्यों? किसी और खाने की चीज को अमृत नहीं बोला है, सिर्फ शहद को बोला है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को सब कुछ मिल रहा है। लेकिन 83 कुछ कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम दाल खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा है, एक लिमिट में है, बहुत कम। चाहे वो आयरन है, दूसरे और जितने भी न्यूट्रिशन है वो सब है, बशर्ते कि वो कुछ कम है कुछ ज्यादा है, लेकिन चिकनाई नहीं है। लेकिन जब हम इसको दूध के साथ ले लेंगे तो इसको चिकनाई मिल जाती है कुछ, और ये फिर बहुत हेल्दी होता है दूध के साथ। तो शहद को असल में हमें यूज कैसे करना है डिपेंड करता है। बहुत सारे ये सोचते हैं कि हमने फैट काटना है, ये सोच करके शहद ले आते हैं मार्केट से, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वास्तव में कौन सा शहद फैट काटने के काम आएगा। शहद तो अलग अलग फूलों के हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होता कभी भी। शहद किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये तो फूलों से आता है। मधुमक्खियां भी इसको नहीं बनाती। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर दूं ना कि शहद कौन बनाता है, आप सीधा बोल देंगे मधुमक्खियां। ना, मधुमक्खियां शहद नहीं बनाती, वो तो बेचारी ट्रांसपोर्ट है, वो तो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। फूल से उठाती है और छत्ते में लगाती है, वो कोई चेंज नहीं करती, ना वो कलर चेंज करती है उसका, ना उसका स्वाद चेंज करती हैं, और ना ही उसके न्यूट्रिशन चेंज करती हैं। हाँ, बल्कि उसमें और डाल देती हैं। कैसे? उसने फूल से चूसा, उसको जीभ से अपने अंदर थैली में लेके जाती हैं। अब जो ही जीभ से लेंगे, आप लोग भी खुद देखो, जब आप कुछ भी खाते हो तो आपकी लार उस भोजन में मिक्स हो जाती है ना। अब लार के अंदर मधुमक्खी की लार उसमें मिक्स हो जाती है, उसमें एंजाइम्स हैं बहुत उसकी लार में, तभी तो वो पचा पचाया भोजन है। ये शहद पचा पचाया भोजन है, तभी ये 20 मिनट में जो है ना ब्लड चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मधुमक्खी ने फूल से उठाया, लार मिक्स हो गई, छत्ते में लगा दिया, काम यही नहीं, खत्म नहीं होया। वो तो बिल्कुल पानी था, शरबत जैसा मीठा, उसमें उसको उसने गाढ़ा करना है। फिर 18% मॉइस्चर पे लेके आएंगी। अब देखो कितनी मेहनत, इनकी मेहनत के बारे में बताता हूँ। देख मधुमक्खियां कितनी मेहनत करती हैं। फूल से उठाया, 70 से 80% मॉइस्चर होता है उसके अंदर जब वो लेके आती हैं, और जब वो छत्ते में लगा देती हैं तो वो 18%, यानी कि 4-5 दिन लगते हैं उसको, 18% आ जाएगा तो उसको मोम से बंद कर देती हैं, ऊपर उसके मोम कोटेड कर देती हैं ताकि वो सेफ रहे। परमात्मा ने देखो दिमाग कितना दिया, उसको सेफ रखने के लिए उसके ऊपर मोम की परत चला देंगी। इट मीन्स वो अब पक गया शहद। अब वो मधुमक्खी ने वहां से उठाया, लार एक बार मिक्स हो गई, छत्ते में लगाया, काम यहां खत्म नहीं हुआ। लेकिन छत्ते में भी नहीं लगा पाती कहीं। तो होता क्या है, जब दिन में ये शहद ढोती हैं तो तब क्या करती हैं, असल में जो अंदर छत्ते में मधुमक्खियां हैं उनको तो मालूम है कहां जगह है खाली, लेकिन जो बाहर से आ रही है मधुमक्खी शहद लेकर के, उसको मालूम नहीं है मुझे कहां लगाना है, और उसको ढूंढने में उसका टाइम वेस्ट होता है। देख दूसरी मधुमक्खियों को दिमाग कितना दिया, वो तुरंत जो भी बाहर से लेके आ रही है और जो अंदर है वो फट देसी जीभ से जीभ लगाती है, तू मेरे को दे दे फटाफट इसको, और तू जा फटाफट
और शहद लेके आ, नहीं तो अभी दिन छिप जाएगा, है ना। उसको फटाफट वापस भेजती हैं, क्योंकि उसको तो रास्ता भी पता है और जगह भी पता है, और जो अंदर है उनको मालूम नहीं है अभी कहाँ जाना है बाहर, उनको टाइम लगेगा। अब उससे कन्वर्ट कर लेती हैं अपने अंदर, फिर दोबारा लार मिक्स हो गई, फिर वो मधुमक्खी वो छत्ते में लगाती है, फिर उसका मॉइस्चर कैसे कम होएगा, फिर इनको परमात्मा ने वैक्यूम सिस्टम दिया। ये क्या करती हैं रात को, फिर फुर्सत में, फुर्सत होती है रात को इनके पास, रात को फुर्सत में उस छत्ते में से उस नेक्टर, असल में उसको नेक्टर बोलते हैं हम लोग, उस नेक्टर को पीती हैं और उसमें जो मॉइस्चर है उसको अलग कर लेती हैं वैक्यूम से। फिर क्योंकि कुछ मात्रा में कर पाती हैं, एकदम नहीं कर पाती सारा, कुछ मात्रा में कर पाती हैं, फिर दोबारा उसको लगाती हैं, फिर वापस अगले दिन इसी तरह। उसको कई दिन लग जाते हैं ऐसा करने में। अब 8 से जो शहद आप लोग देखते हो, है ना, गाढ़ा शहद, उसको बढ़ने के लिए मधुमक्खी ने उसको 8 से 10 बार पिया और फिर छोड़ा। अब उसको देखो 8 से 10 बार उसके अंदर उसकी लार मिक्स हो गई, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिशन ज्यादा हो गए। इसलिए शहद में बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। और भी हैरान करने वाली बात, ये मधुमक्खी के छत्ते ऐसे नहीं बनते। आप लोग तो बड़ा इजी है हम लोगों के लिए बोलना, है ना, छत्ता तोड़ लो, है ना, लेकिन उसने अपना घर कैसे बनाया है वो आप सोच के देखो। हम लोग अपना मकान बनाने में 2-2 साल लग जाते हैं, है ना, और वुड को भी देखो इसी तरह टाइम लगता है। वो क्या करती है, अगर उसको छत्ता बनाना है उसको क्या जरूरत पड़ेगी, मालूम है क्या जरूरत पड़ती है छत्ता बनाने के लिए? क्या जरूरत पड़ती है? नहीं मालूम है? मोम से बनाती है ना, उसको मोम की जरूरत पड़ती है। अब मोम कैसे बनेगा देखना। ये क्या करती है, वो जो नेक्टर आया उस नेक्टर को वो मधुमक्खी जो सिर्फ जिसकी उम्र 1 महीने की है, अब आप लोग भी ना ये सोच के हैरान रह जाएंगे कि मधुमक्खियों की इतनी संख्या है तो वो कैसे काम को अपना बांटती हैं, है ना। अभी अपने काम को कैसे, असल में उनका काम उनकी उम्र के हिसाब से बंटा हुआ है। किसी की ड्यूटी नहीं लगा रखी भी तू जा शहद लेके आ, तू पानी लेके आ, ऐसा कुछ नहीं है। उनका उम्र है कि उनकी जो जैसे उम्र होती है वैसे उनके, जिसने वैक्स तैयार कर सकती है तो वो 1 महीने तक की मधुमक्खी की जो कर सकती है। रॉयल जेली तैयार कर सकती है तो वो भी 1 महीने तक की उम्र की जो मधुमक्खी होती है वो तैयार कर सकती है ना। आप रॉयल जेली का नाम सुना है? हाँ, रॉयल जेली क्या होती है मालूम है? असल में जो रानी मधुमक्खी होती है वो ना शहद खाती है ना पोलन खाती है। मधुमक्खियां फूलों से 2 चीज लेके आती हैं, एक शहद और एक पराग, पोलन। ये दोनों उनके खाने की है। बच्चे बनते हैं, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, फिर बच्चे आते हैं, वो सब पूरी जिंदगी वर्कर जो है ना, ड्रोन भी, वो सब पोलन और शहद की मात्रा मिक्स कर करके ही खाते हैं। लेकिन रानी मधुमक्खी जो क्वीन होती है, जब नाम ही क्वीन दे दिया उसका, वो तो रॉयल ही खाएगी, रॉयल जेली खाती है वो सारी जिंदगी, और रॉयल जेली से ही वो बनती है। अंडा वही है, देख परमात्मा के कृष्ण में अंडा वही है, उसी से वर्कर बन रहा है, उसी से क्वीन बन रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है लाइफ में?
कि हम इंसान, कोई हमारे में से कोई एक, हमारी एवरेज उम्र 80 से 100 हो सकती है, लेकिन पॉसिबल है किसी की 500 से 600 साल हो जाए? नहीं है ना, कोई पॉसिबल। लेकिन इसमें है, मधुमक्खी में अंडा वही है, उससे क्वीन बनी, उसकी उम्र लगभग 3 साल तक हो सकती है, डिपेंड करता है क्लाइमेट। 2 साल तो हमारे इंडियन क्लाइमेट में है, यूरोपियन क्लाइमेट में 3 साल तक है, क्योंकि वो ठंडा मुल्क है। वर्कर अंडा वही है, उसकी उम्र कितनी है? 3 से 4 मंथ एवरेज। अब हिसाब लगा लो, अंडा वही है, उसकी उम्र देखो इतनी बनाई है। किस वजह से हुई हो? रॉयल जेली की वजह से। रॉयल जेली के अंदर ये बताते हैं इतनी पावर है कि अगर उसको खाया जाए जिंदगी स्टार्टिंग से लेके तो लाइफ बढ़ सकती है। उस यहाँ तक कि हमारी जो स्किन पे जो झुर्रियां आ जाती हैं वो भी नजर नहीं आएंगी जब बुढ़ापा आ जाएगा, अगर हम रेगुलर बहुत रॉयल जेली यूज करते रहें। ऐसा है रॉयल जेली का। कभी आपने, वैसे तो यहाँ पे ऐसी उम्र के बैठे हैं, उन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो को तो नहीं देखा होगा, है ना, फोटो में देखना। बेनजीर भुट्टो लगभग बूढ़ी सी होने पे आ गई थी, लेकिन वो यंग देखते थे, रॉयल जेली खाते थे बहुत ज्यादा। अब रॉयल जेली से ही उसने रॉयल जेली खिलाई जाती है, और रॉयल जेली से ही उसका कंट्रोल है। हम लोग सब किताबों में या कहीं भी ये पढ़ते हैं कि रानी मधुमक्खी ही कंट्रोल करती है सारे परिवार को। असल में ऐसा नहीं है। वो जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये जो इनकी उम्र के हिसाब से इसका काम बटा हुआ है, और वर्कर ही सब कंट्रोल करता है। क्वीन को भी कंट्रोल वर्कर करता है। ऐसा नहीं है कि वो क्वीन के कंट्रोल में वर्कर है ना। तो वो रॉयल जेली खा करके ही पूरी उम्र वो उसी के हिसाब से अंडे देती है। उसकी रॉयल जेली ज्यादा मात्रा में कर देंगे तो वो अंडे ज्यादा देगी। वो अंडे तैयार होते ही रॉयल जेली की वजह से है। ज्यादा अंडे देंगी, रॉयल जेली बंद कर देंगी तो वो भूखी रहेगी तो अंडे बनने बंद। देखो कितना कंट्रोल है। ये सारा कंट्रोल वर्कर के ऊपर है। तो मधुमक्खियों के काम यानी वैक्स, आपको बता रहा था मैं कि ये छत्ता कैसे बनाती हैं। उसको पिएंगी शहद को जो नेक्टर होता है, और उल्टी लटक जाती हैं अपने छत्ते में। कहीं भी, चाहे पेड़ पे लगा हुआ है चाहे कहीं पर भी है, वो उल्टी लटक जाती हैं। उल्टी लटक करके फिर उनके पेट पे सेल बने हुए हैं, और उससे मोम के कण निकलते हैं फिर, और वो मोम के कण दूसरी मधुमक्खियां उठाती हैं और वो अपने छत्ते में लगाती हैं, फिर उसका छत्ता बनाती हैं। वो देखो कितनी मेहनत करती हैं वो। यानी कि वो मोम के कण बनाने के लिए उनको कितनी कष्ट देना पड़ रहा है अपने शरीर को, उल्टा लटकना। और फिर वो दूसरी मधुमक्खियां उसको वहां से उन कणों को चुनती हैं। आप नंगी आंखों से भी नहीं देख पाएंगे, इतने बारीक कण होते हैं मोम के, जब वो उठाती हैं वहां से उसके पेट से। और वो दूसरी मधुमक्खियां वहां से उठाती हैं और फिर वो छत्ता जहां जहां बनाना होता है। और भी सुनो, छत्ते को ऐसे नहीं, उसको मजबूती देने के लिए परपोलिस लेके आती हैं। अब आप कहेंगे ये परपोलिस क्या है? हमने तो ये सोचा है कि शहद मतलब मधुमक्खियां मतलब शहद है ना। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि मधुमक्खियों का मतलब है शहद भी, और दूसरी चीजें फिर ये परपोलिस क्या आ गई। असल में मधुमक्खियां पेड़ों से, जो पेड़ों की बिल्कुल पतली कोमल जहां से पत्तियां निकलती हैं, वहां एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता पेड़, उसको उठा के लेके आती हैं और वो अपने छत्ते में उसको मिक्स करती हैं। अब हिसाब लगाओ कि कितनी मेहनत हो रही है कि मोम के कण उधर से मिक्स उठ रहे हैं और उसमें फिर परपोलिस भी मिक्स हो रही है ताकि उनका छत्ता मजबूत बने। उसमें परपोलिस मिक्स करेंगी
वो थोड़ी हार्ड चिकन है ना होती है प्रोपोलिस, उसमें वो मिक्स करेंगी। और भी छोड़ो, उसको ये क्या करते हैं, अपना जो अगर हमने बॉक्स में पालते हैं हम, तो इनकी नेचर है उस बॉक्स को, जैसे हम अपने घर को लेप कर देते हैं ना, रंग कर देते हैं, तो ये भी अभी अपने घर को अंदर से प्रोपोलिस से लेप कर देती हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई फंगस ना पैदा हो जाए, किसी तरह का कोई कीट ना अंदर आ जाए, तो उसको रोकने के लिए प्रोपोलिस लगाती हैं। अब वो प्रोपोलिस, लेकिन हम लोग उसको इकट्ठी कर लेते हैं एक प्रोपोलिस स्ट्रिप, क्योंकि उनकी आदत है कहीं भी उनको छेद नजर आता है तो प्रोपोलिस से भर देते हैं। तो हम एक प्लास्टिक की स्ट्रिप रख देते हैं ताकि वो प्रोपोलिस उस पे उस छेद को ब्रिक ब्रिक, जिस तरह ये छेद है ना इस तरह ही होते हैं उसमें, तो उसको भरे वो, और वो उसमें उसको भरती है। जब वो भर जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं और उसको प्रोपोलिस को इकट्ठी कर लेते हैं। और वो प्रोपोलिस फिर असल में उसकी वैल्यू है फिर बहुत, जितने भी आप दवाई, आपको चोट लग जाती है क्या लगाएंगे आप, एक ट्यूब आती है बेटाडीन की, है ना, वो लगाते हैं, उसमें असल में प्रोपोलिस है, उसमें आपका कुछ भी और कुछ नहीं है। मतलब अगर उन्होंने कुछ और उसमें डाल रखा है सिर्फ ट्यूब बनाने के लिए, अदरवाइज उसमें प्रोपोलिस होती है, और वो प्रोपोलिस ही आपके जख्म को भरती है। आप डायरेक्ट प्रोपोलिस भी लगा लोगे ना, कहीं जख्म हो गया और उस पर पट्टी बांध दोगे, इतनी जल्दी जख्म भर जाएगा पूछो मत, इतनी जबरदस्त एंटीबायोटिक है ये, एंटीसेप्टिक है, आप सोच नहीं सकते। हम लोग फिर इसको ये देखो, ये ऐसे इस हार्ड फॉर्म में होती है, इसको इकट्ठी करके और ये बिकती है। फिर ये कंपनियां जितनी भी दवाइयां बनाती हैं ये सब खरीदती हैं इसको, ये खाने के काम नहीं आती। आप इसको खाओगे तो नहीं चबेगी, मुंह में घुलती ही नहीं है। और इसके क्या बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं। आपको किसी को भी दांतों का पायरिया रोग हो गया, खून आना शुरू हो जाता है ना, उस कैप्सूल में कुछ नहीं है, प्रोपोलिस है। पायरिया रोग का कोई इलाज नहीं है, प्रोपोलिस है। उन कैप्सूलों के अंदर प्रोपोलिस होती है। बहुत सारे डॉक्टर जो है, जो दांतों के डॉक्टर हैं, जो रिसर्च करते हैं फिर आगे, क्योंकि रिसर्च सेंटर है, फिर वो हमसे प्रोपोलिस मंगाते रहते हैं, आधा किलो भेज दो रिसर्च करने के लिए, वो रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। फिर तो ये काम आती है। देखो मधुमक्खियां क्या ले रही हैं, हमें कितना दे रही हैं। और सुनो, हम लोग ये सोचते हैं डंक मार दिया मधुमक्खी ने, मर गए बस, अब तो आप नहीं बचेंगे हम, है ना। और दवाई जाएंगे डॉक्टर के पास, बाज करके दवाई लेंगे, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है कि जो मधुमक्खियों का जहर है वो हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, सोच भी नहीं सकते। अगर आपको, जैसे हम लोग मधुमक्खियां पालते हैं तो हमें रेगुलर हफ्ते में 2-4 बार, अव्वल में तो जब भी छेड़ेंगे हम उनको देखेंगे तो भी वो डंक मार लेती है हमें, तो डंक लग गया तो हमें तो कह रहा कुछ नहीं होता, आदत होगी हमारे शरीर को तो। लेकिन इसको जो रेगुलर इसमें डंक लगते रहेंगे तो हमें क्या नहीं हो सकता। सुनो, पहली बात तो हमें इतनी जल्दी बिल्कुल भी गठिया बैय तो हो ही नहीं सकता। हमें हमारा जो ब्लड पतला रहेगा, हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी हार्ट अटैक नहीं आएगा इतनी जल्दी। कैंसर, मधुमक्खी का जहर कैंसर को तोड़ता है, ये इतने नहीं होएगा। और गठिया बैय का तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे पास, और जितने भी गठिया बैय के इंजेक्शन बनते हैं वो बी वेनम से बनते हैं, मधुमक्खी के जहर से। और भी, क्योंकि आप लोग लेडीज हैं, आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता हूँ। चलो आज एक आप लोग हंसेंगे भी
लेकिन आप सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे। सुनो, लेडीज पार्लर जाती है, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों के पास पैसा है। वो क्या होता है, पार्टी करनी है, उम्र हो चुकी है 45-50 साल की, दिखाना है मैं 25 की हूं। हाँ? ऐसे ही है, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, बुरे हाल है। पार्टी करनी है, पार्लर में जाएंगे यंग बनने के लिए। अब वो पार्लर वाला क्या करेगा, लेडीज जो भी होते हैं वहां, उसको भी नॉलेज नहीं है कि वो जो मसाज कर रहा है वो क्या है उसके अंदर। मैं बताता हूं, असल में एक क्रीम लगा करके कभी भी अगर आपने देखो तो मसाज करते हैं ना, ऐसी होता है ना पार्लर के अंदर। सुनो, ये देखो, ये क्या होगी, ये झुर्रियां आ गई। एक एज होती है, उसके बाद ये झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, जो हमारे एक निशानी है कि हमें अब बुढ़ापा आ रहा है ना। और वो लोग को पार्टी करनी है, उन्होंने पार्टी में जाना, दिखाना अपने आप को कि हाँ चमक रहा मेरा चेहरा। अब वो मसाज बड़ा मसाज करता है, उसमें है क्या, वो मधुमक्खी का जहर है उस क्रीम के अंदर। इतनी कम मात्रा में है कि वो साइड इफेक्ट तो नहीं होता, कहे छोड़ो कोई गलत, लेकिन वो इतनी मात्रा में है कि आपका मुंह भी फुला करके इतना मोटा नहीं करेगा, वो बहुत कम मात्रा में होता है। अब वो जो मसाज करता है, ऊपर से रगड़ता है, वो जो वेनम है वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। जो है स्किन के अंदर जाएगा तो 2-3 दिन के लिए हमारी स्किन टाइट हो जाएगी, वो वेनम की वजह से। बस उनको लगता हम यंग हो गए। ये है वेनम, देखो कभी कभी देखना, है ना। मैंने तो वैसे अब तो इंटरनेट पे है, बी वेनम क्रीम डाल के देखना, उसमें वेनम होता है, और वो इस मधुमक्खी का जहर है। असल में मधुमक्खियों का जहर इकट्ठा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बहुत महंगा बिकता है, 1 ग्राम ही 10,000 रुपए का बिकता है। 1 ग्राम इतना महंगा इकट्ठा करेगा, हम मशीन है ना। उस पर क्या करती है मधुमक्खियां, डंक मारती हैं, उसमें एक्चुअली करंट, एक बैटरी का करंट चलता है, उस पर तारे हैं, और वो जो है उस पर आती है मधुमक्खी, उसको करंट लगता है, उसको गुस्सा आता है मधुमक्खी को, वो डंक मारती है। नीचे उसमें कांच है, और वो उसका वेनम उस कांच पे छूट जाता है, उसका डंक नहीं छूटता, क्योंकि मधुमक्खी का असल में जब वो डंक मारती है हमारी स्किन में, तो स्किन होने की वजह से डंक स्किन में चला जाता है, क्योंकि उसके डंक में हुक है, हुक सिस्टम है, और वो वहीं छूट जाता है, क्योंकि हुक वापस नहीं आने देती और उसमें छूट जाता है, और मधुमक्खी मर जाती है। ये ध्यान से सुनना, देखो कितनी बेचारी अगर डंक मारती है तो अपनी मौत बुलाती है, एक तरह से वो मजबूरी में मारती है, डंक मार दिया तो वो डंक जो है उस वेनम छूट जाएगा, डंक नहीं छूटेगा, मधुमक्खी सेफ है। जैसे हम अपना ब्लड 3 महीने के बाद दोबारा दे सकते हैं ना, इसी तरह मधुमक्खी का भी 15 दिन के बाद फिर दोबारा हम वेनम ले सकते हैं। उसमें 15 दिन लगते हैं फिर दोबारा उसी तरह वेनम आने में, तो वो फिर वेनम इकट्ठा करते हैं ऐसे, और वो ये जितने भी जो अच्छी क्वालिटी का वेनम है वो इंजेक्शन बनने के लिए ड्रग्स कंपनियों के पास चला जाता है, और थोड़ा जो लो क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी का मतलब कि बाय चांस वो जो मशीन चल रही है तो उस पर डस्ट गिर गई, या पोल्यूशन की वजह से उसमें इफेक्ट आ गया, या वो डी फ्रीज, क्योंकि उसको तुरंत के तुरंत डी फ्रीज करना है वरना वो खराब हो जाएगा। अब बाय चांस उसमें कुछ भी इफेक्ट आ गया तो वो कहाँ जाएगा फिर, ये क्रीम बनने के लिए। समझ में आएगा। तो ये देखो मधुमक्खियों से
क्या नहीं मिलता हमें। मधुमक्खी का जीवन अगर हम देखें, हम मैंने तभी तो बोल दिया था शुरू में कि हमारा जीवन कुछ नहीं है उनके आगे। उनके काम को अगर हम सोच देखें तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ उनके आगे कुछ नहीं है। वो बेचारी छोटा सा जीव हमारे लिए क्या नहीं देता हमें। और भी सुनो, इस पृथ्वी पे ये बताते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, यानी इंसान को जब है ना प्रकृति ने यहाँ लेके आया, उससे पहले वह मधुमक्खियों को लेके आया था ताकि खाने के लिए भोजन हो। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो खाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं होगा, यह ध्यान रखना। मधुमक्खियां पोलिनेशन का काम करती हैं, पर परागण की क्रिया, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक फूल से दूसरे फूल तभी बीज बनता है। हिमाचल में, कश्मीर में अभी अप्रैल के महीने में ही फूल खिल जाएगा। कहाँ पर? किसको? सेब को, खुमानी को, इनको बादाम वगैरह को, अखरोट को। लेकिन वहां पर तो कोई कीट नहीं है क्योंकि बर्फ गिरी थी। अभी पिंगलती भी नहीं अप्रैल के महीने में, तो उससे पहले तो एप्पल को फूल खिल जाता है सबसे पहले। तो वो लोग हम लोगों से किराए पे 1500 रुपये महीना, 1200 रुपये महीना ऐसे किराए पे मधुमक्खी के बॉक्स लेते हैं किसान, ताकि उनकी पोलिनेशन हो सके। अगर पोलिनेशन नहीं होगा सेब नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो टेढ़ा मेढ़ा लग जाएगा। इसी तरह ये और दूसरी फसलें हैं। सभी फसलों को ग्रोथ करने में, बढ़ाने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। और इस इंडिया में तो खासकर 5 तरह की मधुमक्खियां हैं। थोड़ा सा ना ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। 5 तरह की मधुमक्खियां है कि हम लोग 2 भाई एक परिवार में नहीं रह सकते, लड़ते हैं। और ये कभी नहीं देखो लड़ती, इकट्ठी रहती हैं, है ना। देवरानी जेठानी एक घर में नहीं रहेंगी, लड़ना शुरू हो जाएगा। और ये देखो कितने एक ही परिवार में इकट्ठे रहते हैं। और जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ज्यादा डिसिप्लिन और वर्क होएगा, उतनी ज्यादा शहद इकट्ठा करेंगे। और शहद नहीं बल्कि आप तो ये सोचो, देख क्या क्या लेके आई हो। नेक्टर लेके आई, पोलन लेके आई, प्रपोलिस लेके आई, और एक पानी तो रह गया। ये पानी, अब आप कहेंगे पानी किस लिए? असल में जो गाढ़ा कर दिया शहद, उसको फिर नेक्टर बना देती है पानी मिक्स करके। टाइम होता है इसका, अभी हमने इस टाइम पर शहद निकाल लेना है। हाँ जी। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं निकालते हम। नहीं मतलब वही मैं पूछ रही हूँ कि जैसे होता क्या अल्टीमेटली, जैसे मान लो बहुत टाइम तक रह गया शहद छत्ते में, तो क्या वो सूख जाएगा या ना क्या है? नहीं, शहद में ये खासियत है, शहद कभी सूखता नहीं है। नहीं उनके छत्ते में मतलब नहीं होता, क्यों इकट्ठा किया? नहीं होता, पर्पस भी तो है ना कोई। नहीं वो खराब नहीं, तो उसने कोटेड कर दिया ना मोम से। नहीं वो तो कर दिया, उसका पर्पस क्या है उनका इकट्ठा करने? अच्छा, असल में मधुमक्खियां सुनो, ये हमारे लिए थोड़ी ना तैयार कर रही है शहद को, ये तो अपने लिए स्टोर कर रही है, अपने बच्चों के लिए। देखो हम लोग भी तो कमाई करते हैं ना, कमाते हैं ना। मैडम तनख्वाह लेके आती है, मेरे लिए थोड़ा लेके आ रही है, अपने बच्चों के लिए लेके आ रही है, अपने परिवार के लिए लेके आ रही है, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही है। वो भी शहद इकट्ठा कर रहे हैं तो अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हम तो चोरी करते हैं। जिंदल को जानते हो? नवीन जिंदल, हाँ, वो अभी प्रधानमंत्री जी आए थे ना, तो उसके प्रोग्राम में हम लोग वहां इकट्ठे हुए थे। तो नवीन जिंदल जी काफी फुर्सत में बैठकर मेरे से बात करने लगे। बोले ये बता, अच्छा ये चोरी नहीं करते आप लोग ये शायद? मैं जी बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ चोरी करते हैं, है ना, लेकिन हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, हम उनको
मारते नहीं हैं, हम उनका छत्ता तोड़ते नहीं हैं। हम मधुमक्खी पालक हैं, हम उनको पालते हैं। जब उनको जरूरत होती है तो तब हम उनको खाने को भी देते हैं। यानी शहद तो हमने ले लिया, ठीक है, ले लिया, हमने चुरा लिया, लेकिन जब उनको फ्लोरा नहीं होता तो तब हम उनको फीडिंग कराते हैं। क्योंकि उस टाइम उनको खाने के भोजन कहाँ से मिलेगा, उनको तो मीठा खाना है, तो तब हम उनको फीडिंग कराते हैं। और फीडिंग शुगर की, क्योंकि वापस शहद नहीं खिला सकते, वापस शहद खिला दिया, ये बहुत बड़ी कमी है उनके अंदर। बस मैंने मधुमक्खियों की सब जिंदगी, मैंने 30 साल हो गए मुझे, मैंने मधुमक्खियों के सब कुछ बहुत इतना प्यारा लगा, सब कुछ इतना, बस एक कमी मैंने परमात्मा से बोला है कि आपने ये कमी क्यों छोड़ी। मधुमक्खियों को इतनी बुद्धि दे दी सब, है ना, लेकिन ये क्यों दे दिया आपने। ये असल में इनमें सिर्फ एक कमी है, जब इनको शहद की खुशबू आती है तो ये हंगामा करती हैं बहुत बुरी तरह से, और इतनी टूट पड़ती हैं ऊपर, है ना, एक दूसरे को खत्म कर देती हैं, यानी अपने ही परिवार को खत्म कर देती हैं। कब, जब बाहर फूल नहीं है, बाहर से तो शहद नहीं आ रहा है, इनको सब मालूम होता है। एक ही दिन अगर शहद रुक गया ना बाहर, तुरंत पता चल जाएगा पूरे परिवार को, उसी दिन सब कंट्रोल करना शुरू कर देंगी। रानी मक्खी की रोज जली बंद करो ताकि अंडे ना दे, क्योंकि अंडे देंगी तुम खिलाएंगे कहां से बच्चों को, बंद करो बच्चे पैदा करना, उसके रोज जली बंद, जो ही बाहर से शहद बंद, रोज जली बंद रानी मक्खी की। रानी मक्खी मारेंगे नहीं उसको, जिंदा रहने के लिए रोयल जेली देंगे बस, ताकि वो जिंदा रहे। अब वो क्या होता है, जब हम मान लो फीडिंग करा रहे हैं, उसमें अगर हमने शहद मिक्स कर दिया और वो दे दिया उनको, हमने कई बार देखा ऐसा, लेकिन वो हंगामा करती हैं बहुत बुरी तरह से। वो शहद की खुशबू ऐसी आती है उनको, और वो जो जिस भी मधुमक्खी ने शहद पी लिया, पहले तो जो दूसरी ओर रहेगी, मान लो हमने एक किसी बर्तन में शहद रख दिया तो वो तुरंत उस पर टूट पड़ेगी, जगह नहीं रहेगी दूसरी मधुमक्खियों को आने के लिए। जिसने पी करके पीछे हट करके वापस छत्ते में जाने की कोशिश करी तो दूसरी मधुमक्खियां उसकी जीभ को पकड़ लेंगी, क्योंकि उसके मुंह में से खुशबू आ रही है शहद की, उसकी वो क्या करेंगी, जीभ ही काट देंगी। अलूमर की वो उसकी जीभ काटेगी, वो उसकी जीभ काटेगी। 2 घंटे में ही पूरी कॉलोनी मधुमक्खियों की खत्म। इसलिए इनको वापस शहद नहीं दे सकते, शुगर फीडिंग देते हैं जिंदा रखने के लिए। ऑफ सीजन में उसमें से खुशबू नहीं आती, इनको है ना सुक्रोज की जरूरत होती है और वो शुगर में मिलती है, तो वो उसको वो देते हैं ताकि वो जिंदा रहे। चीनी डाल देते हैं सर। हाँ तरीके हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। फिर मैडम वो तो एक्चुअली हम लोग इनको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आए हैं, हम तो इनको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, थोड़ा सा भी एक मधुमक्खियों से प्रेरणा। सर आप इनको ये भी बताइए कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया होगा आपने, हाँ मैडम, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, उसका कमर्शियलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, हाँ, कहाँ तक आपका हनी पहुँच गया है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है ओके, जो बताना। ठीक है। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा, सुनो कि आप लोगों को मैं अभी टाइम दूंगा, क्वेश्चन मेरे ऊपर डाल दो, जितने भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। और किताबों में इंटरनेट पे जवाब नहीं मिलेगा, मेरे पास सब जवाब मिलेगा, सब मधुमक्खियां और शहद इससे रिलेटेड किताबों में नहीं मिलेगा आपको, और है ना, उनमें तो और फालतू की बातें लिख रखी, क्योंकि हमने उन मधुमक्खियों के साथ रह करके जिंदगी गुजारी है। 30 साल कम नहीं होते लाइफ में, और उन्हीं में रहना, वहीं खाना, सब कुछ। तो जैसे मैडम ने पूछा है, अगर कोई भी काम
फूड से रिलेटेड कोई करना चाहे, फूड कोई भी है, मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप लोग शहद के काम करें या शहद के ही वैल्यूडेशन, ठीक है आप लोग और भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे हैं लेडीज के लिए तो काम, लेकिन ध्यान रखना कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यानी कि अपना काम स्टार्ट करने के लिए खासकर फूड का आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। कोई आपको ऐसा नहीं है कोई फांसी पे लटका देगा, अगर आप कोई आपके पास एक आध कोई नहीं है कागज, कोई बात नहीं, हो जाते हैं सब। हमने भी तो देखो, मैं तो बिल्कुल अनजान न्यू कॉलेज इस मामले में अनपढ़ ही था, लेकिन हमने भी इसी तरह सीखते सीखते सीखे। सुन लो, पहले तो एक अपने ना ध्यान रखना, कोई भी काम शुरू करना कंपनी बनानी है, क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगी। आपको जीएसटी नंबर जरूर लेना, हालांकि कानून है 40 लाख तक का अगर आपने टर्नओवर कर लिया, यानी बिल काट दिए सेल के एक साल में 40 लाख के अंदर अंदर, तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं लेनी है। चाहे आपकी 2 लाख रुपये की सेल हुई पहले साल, जीएसटी जरूर लेनी है, वो आपके काम आएगी, क्योंकि जीएसटी है इट मींस आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का टर्नओवर तभी माना जाएगा जब आपके पास जीएसटी आप टर्न है ना उसको फिर करते हो जीएसटी। सर रजिस्ट्रेशन के लिए और जीएसटी नंबर के लिए कहाँ जाना है इनको? कोई मुश्किल नहीं है, आपने पहले तो अपनी कंपनी का नाम चूज करना है, ऐसा नाम रखना है। और सुनो, अगर नहीं सुनना है तो चुपचाप सो जाओ, बोलना नहीं है। आपने कंपनी सुन लो ध्यान से, बहुत सारे ना मैंने भी गलती की है, देखो जो मेरे से गलती हुई मैं खुद बताता हूँ आपको। मैंने पहले कंपनी बना ली है प्रोपराइटर, अपनी प्रोपराइटर होती है पर्सनल, एक अकेले आदमी की, है ना वो, हाँ वो इजी लगी, जिस सीए ने मुझे वही सजेशन कर दिया, लेकिन ये तो बाद में मालूम चला नहीं, ये तो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए या लिमिटेड होनी चाहिए कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में 2 मेंबर कम से कम होने जरूरी हैं, चाहे आपके परिवार के ही हो। लिमिटेड उसमें 10 होने जरूरी हैं, चाहे वो आपके कुछ परिवार के हो या बाहर के भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, 10 डायरेक्टर उसमें होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में 2 कम से कम डायरेक्टर होते हैं। शेयर उनके 50-50 भी हो सकते हैं, किसी के 60 भी 40 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए। जिसके 60% शेयर होंगे वो एक तरह से उसकी पावर ज्यादा होती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड बना लो, उसके बाद जीएसटी नंबर ले लिया, कंपनी का नाम अगर प्राइवेट ले रहे हो याद रखना सीए उसको रजिस्टर्ड करेगा, सेंटर से उसका नाम अप्रूव्ड होकर के आएगा। आप अपनी मर्जी से नाम तो रख लिया आपने, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं, अप्रूव्ड होके आएगा। कैसे कि सेंटर से नाम पहला अक्षर ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे उसमें किसी का हो ही ना, यूनिक होना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, सुनो। जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए अप्लाई करवाया सीए थे, मेरी पहली फर्म थी काम्बोज बी फार्म। मैंने उनको कहा भी काम्बोज हनी बी फार्म प्राइवेट लिमिटेड ये नाम रजिस्टर कराओ, तो ऑब्जेक्शन लग के आ गया कि ये नाम नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो काम्बोज पहले से ही किसी और के पास रजिस्टर्ड था। मैंने उनको पूछा सीए को भी, यार इसमें कहने लगा कोई इंद्री का है, इंद्री के पास का कोई उसके नाम रजिस्टर्ड है। मैंने कहा यार मैंने नाम तो यही रखना है, फिर इसका सोल्यूशन कहने लगा अगर वो लेटर पैड पे अपने लिख करके दे दे भी हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आपका तो हनी का काम है और हमारा तो बीज का काम है, तो हमें कोई इतराज नहीं है।
फिर हो जाएगा। कोशिश की मैंने उनसे मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने क्या किया, फिर एक अक्षर चेंज कर दिया, लास्ट का जे की जगह जेड लगा दिया। भाई बोलने में तो काम्बोज ही आएगा, और वो लगा करके सीएनए पे भेजा तो अप्रूव हो गया। समझ में गया? यानी आपकी जो कंपनी हो वो ऐसी हो, पहला जो अक्षर है वो यूनिक हो, उसके बाद के कोई चक्कर नहीं है। कंपनी हो गई रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर ले लिया, उसके बाद क्योंकि फूड की आइटम है, फूड के आइटम में है ना एफएसएसआई लाइसेंस लेना जरूरी है। अब सुनो, इसमें भी बेचारे नए नए होते हैं ना, बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें कैटेगरी अलग अलग। फिर अब किसी का अगर स्टार्ट है सिर्फ 12 लाख रुपये तक का ही उसके बिल कटेंगे, मालूम है मुझे, मेरी तो 5, 7, 10 लाख रुपये की सेल होगी पहले साल, तो क्या करना है, 500 रुपये में सिर्फ, कुछ भी मुश्किल नहीं है वो, उसको कोई भी आपको चेक करने भी नहीं आएगा, वहीं से ही वो उसको लाइसेंस को दे देंगे। ऑनलाइन है ना, वो रजिस्टर्ड, ऑनलाइन उसको रजिस्टर कराओ, 5 साल की 500 रुपये फीस है, कुछ ज्यादा भी नहीं है। आप है ना, और उनकी एक साइट है, उस पे जाकर के एफएसएसआई की, हाँ अरे उस पे जाकर के वो लाइसेंस वो जरूर लेना, अपने आप को रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बोलते हैं उसको, वो जरूर कर लिया 500 रुपये में, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जब आपका बड़ा काम हो जाए फिर आपको अपनी यूनिट भी लगानी है, प्रोसेसिंग यूनिट है वो, फिर नहीं तो आपको ड्रग्स का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी चीज को ऐसा लिख दिया, जैसे विनेगर लिख रखे हमने भी, ये जो है ना फैट को काटने के काम आएगा, आप इसको पीजिए, ऐसा नहीं लिख सकते लेवल के ऊपर, क्योंकि ये तो फूड है, मेडिसिन थोड़ी ना है, या तो मेडिसिन का लाइसेंस लो फिर। समझ में आ गया? तो फूड के आइटम के ऊपर न्यूट्रिशन लिख सकते हैं कि उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या क्या है, वो क्या आपको इफेक्ट करेगा वो नहीं लिख सकते। आगे समझ में? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैडम आप ही बता दो, चलो और कुछ इसमें। लाइसेंस ट्रांसफर प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता दीजिए आप। हाँ सुनो, आपने कैसे ये बहुत बढ़िया मैडम, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि मैं तो एक जंगलों में रहने वाला इंसान हूँ, जंगलों में रहता था। हाँ, मैं तो सीधे, मुझे क्या मालूम था मार्केटिंग का। हुआ क्या था सुन लो, ये इंटरनेट ना उस टाइम 2G आता था, और ये मोबाइल नहीं थे, स्मार्टफोन, लैपटॉप चलाता था मैं। और ये 2007 में मेरा एक भतीजा था इंग्लैंड में, उसने मेरी फेसबुक बना दी अपने साथ बात करने के लिए। उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था ना, फेसबुक पे भाई बात करने के लिए उसने मेरी फेसबुक बना दी। मुझे चलाने चुलाने नहीं आते थे, वही सिखाता था मुझे, है ना। उस पे फोटो में डलवा लेता था, कहाँ भी क्या कर रहे वीडियो डलवाता था, और वो 2G था, कहीं कहीं टाइम लग जाता था मान लो वीडियो डालने के लिए, उस पर अपलोड करने के लिए। लेकिन उस पे एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आ गई, एक तरह एडवर्टाइजमेंट चलती है ना फेसबुक पे, उस टाइम कम चलती थी, अब तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया अब तो फेसबुक का, है ना, कम चलती थी। एक आई मेरा के इंडिया मार्ट, मैंने उसको क्लिक कर लिया, क्लिक किया तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि आपको अपने प्रोडक्ट बेचना है तो मुझसे कांटेक्ट करो, ये करो और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लो इस पे फ्री। तो मैंने उसमें फोन नंबर डाल दिया, अपनी कंपनी का नाम भी डाल दिया, काम्बोज बी फार्म थी उस टाइम, मतलब थी नहीं, रजिस्टर नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस नाम रख रखे था काम्बोज बी फार्म। आपने कंपनी नहीं बनाई? नहीं बनाई थी मैडम, ये तो 2010 के बाद बनाई। 2007-8 की बात है, कंपनी नहीं थी, नाम लिखता था मैं अपनी गाड़ी पे भी, मेरी गाड़ी पे जो मेरी बाहर मधुमक्खी में चलती थी उस पे नाम लिखा होता था काम्बोज बी फार्म, भी ये मधुमक्खियों की गाड़ी है। समझ में आ गया? तो वो मैंने लिखा तो मेरे को फोन आने शुरू हो गए, भी आप है ना हमारे इसको देखो, हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे,
है ना, लेकिन मैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था कि ये तो फ्रॉड होगा, ये तो दिल्ली से फ़ोन करें, तुम तो दिल्ली वाले, तुम तो फ्रॉड हो, मैं उल्टी और सुना देता था उनको, है ना। लेकिन वो सालों हो गया उनको कई कई बार फ़ोन करने। एक दिन में भी फुर्सत से मैं बैठा हुआ था अपने खेत में, तो वो जो लड़का फ़ोन कर रहा है, मैं उससे वैसे पूछ बैठा, यार तू है कहाँ का, ये बता पहले। कहने लगे जी हिमाचल का, कांगड़ा का। अच्छा चल यार तेरे, उन्होंने जो रिक्वेस्ट सी करी, वो कई दिन हो गए तो उसने फ़ोन करते तो। और उससे पहले लेकिन मैडम मैंने जो उस पर बाय लीड आती थी ना, वो कभी कभी ना फ्री में शो जाती थी मुझे, और उसको क्लिक करता था और उसमें मेरे को कस्टमर मिलने शुरू हो गए थे फ्री में। और मुझे थोड़ा सा यकीन हो गया वास्तव में यार है यहाँ का, और मेरा शायद जाना शुरू हो गया कभी तमिलनाडु, कर्नाटक ऐसे। और मुझे 30-40 रुपये फालतू मिल जाते थे किलो के साथ, लूज में ही ड्रम में ही डाल डाल के बेच देता था, फिल्टर किया कपड़े से और बेच दिया। तो मुझे यकीन होने लगा अभी हाँ कुछ तो है इस पे, ये कस्टमर जो 2-4 मिले मुझे, और तो मैंने उनको फिर पैसे दे दिए, है ना। तो मेरा स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म यहाँ से होलसेल के लिए, अगर आपने जाना है किसी भी उसमें फूड के कोई भी आइटम है, होलसेल की बात कर रहा हूँ, है ना, तो इंडिया मार्ट सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब तो बहुत सारी और कंपनियां आ गई, सब बकवासबाजी। हाँ रिटेल में जाना है तो फिर तो आप अपनी वेबसाइट बनाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, उसको प्रमोट करो, एडवर्टाइजमेंट करो उसकी। आप अभी एग्जांपल देता हूँ, फिर वही बात आती है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मेरा लड़का अब क्योंकि उसने बीटेक करके अभी वो 1 साल से मेरे साथ है, और उसने जो है ना, जैसे क्योंकि मैं जब ऐसे शिक्षा देता हूँ दूसरों को, तो लड़का भी तो आखिरकार सुनेगा, तो उसको भी तो लगेगा ना अभी मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, पापा के उस पर थोड़ी ना चलूँ, है ना। तो उसने क्या किया, अब क्योंकि उसको कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है ना, कंप्यूटर साइंस से की उसने, अब वो रिटेल में, है ना, मार्केटिंग कर रहे हैं, हर रोज 50-60 हज़ार रुपये का शहद बेच देता है, खुद की वेबसाइट खुद ही बनाई, अपनी वेबसाइट की प्रमोट करता है, खुद की वेबसाइट प्रमोट कर रहा है, खुद की ही वेबसाइट से ही कस्टमर आ रहे हैं। और ये जो शहद मुरब्बे है ना, ऑनलाइन 1000 रुपये किलो जा रहे हैं, 900 रुपये किलो जा रहे हैं, खर्चा आ रहा है 400-500 रुपये का सारा, 50% खर्चा आ रहा है, 50% बच रहे हैं। यानी वो देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसने, हम तो जट्टू साही चले सीधे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग भी एजुकेटेड हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखो, अपनी कंपनी को कैसे प्रमोट करना है, कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट उसकी कैसे करनी है, वो कर सकते हो। शहद देख रहे हैं, बहुत सारे शहद ये जमते हैं, ये जमने की वजह से ऐसे हो जाते हैं, जमते हैं। ये शहद की नेचर है जमना, जैसे घी है उसकी नेचर है जमना, फिर वो पिघल जाता है जब उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है। सेम इसी तरह ये है, ये जब धूप आएगी ना, तेज गर्मी होगी, धूप में रख देना तो पिघल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और ठंड है तो ठंड में ये क्रिस्टल हो गया, जमते हैं। इसलिए जमे शहद को कभी भी ये नहीं सोचना कि ये नकली है, इसको फेंक दो, ये खराब हो गया ना। शहद की नेचर है, कुछ शहद थोड़ा ऊपर लिक्विड रह जाते हैं, नीचे जा जम जाते हैं, उसका रीजन है। असल में मधुमक्खियां जो शहद मिलता है ना फूल से, ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण है, नेचुरल, जो फूलों से आया है। जब वो जिस शहद के अंदर ग्लूकोज की, ध्यान से सुनना देख, जिस शहद के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, फ्रुक्टोज की मात्रा कम होगी, वो शहद जल्दी जमेंगे और पूरे जम जाएंगे। लेकिन कुछ शहद के अंदर लगभग रेशो एक जैसी सी होती है ना। वो ऐसे शहद होते हैं कि उनमें जो सा ग्लूकोज था वो तो नीचे बैठ गया जम करके, और ऊपर फ्रुक्टोज रह गया, वो खराब नहीं हुआ वो शहद।
बल्कि वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हाँ अलग हो रहे हैं, हो गए। और ये असल में आपस में मिलते हैं, कण बनाते हैं और नीचे बैठते रहते हैं। जिस शहद के अंदर फ्रुक्टोज ज्यादा होगा, ग्लूकोज की रेशो कम होगी, वो शहद नहीं जमेंगे। बहुत सारे हैं ऐसे, अजवाइन का शहद है, जामुन का शहद है ना, और आपका एक कश्मीर में से आता है शहद, कश्मीर अकेशिया वो है ना, सौंफ का शहद है, कड़ी पत्ते का शहद है, बहुत सारे शहद हैं जो नहीं जमते। देखने में कलर सबका अलग अलग है, कोई डार्क कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है, कोई है ना येलो कलर का है, तो वो नहीं जमते। तो ये चक्कर है, वो लिखना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ कोई और? सर इतनी वैरायटी के शहद बनते कैसे हैं? ये कड़ी हाँ सुनो, फिर वही भाई शहद तो फूलों से आते हैं, फैक्ट्री में नहीं बनते, पहले बता दिया मैंने। और इस पृथ्वी पे कितनी तरह के फूल हैं? सर की जो टीम्स है ना, उन्हीं एरियाज में जाती है जहाँ जो सीजन। हाँ असल में क्या होता है मैं बताता हूँ, हम लोग अपने मधुमक्खी के बॉक्स ना प्रॉपर उस एरिया में लेके जाते हैं। जैसे अजवाइन की खेती हो रही है जहाँ पर उदयपुर बेल्ट में, वहां पे गए, उस टाइम कोई और फ्लोरा नहीं है, तो अजवाइन का शहद आया तो हम उसको वैसे ही रखा। सौंफ का एरिया, सौंफ में गए, कड़ी पत्ता चलेगा अभी अप्रैल के महीने में पहाड़ियों पे, वो कड़ी पत्ते का वो शहद आ गया। ऐसे जामुन के टाइम में सरसों का चल रहा था, अभी सरसों का खत्म होया, धनिया का चलेगा, किक्कर का चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई मधुमक्खी शहद कुछ ला रही है, कोई कुछ ला रही है? मैडम होता क्या, सुनो, हम ये नहीं बोलते, मान लीजिए ये किक्कर का शहद है कि इसमें 100% किक्कर ही है। हो सकता है कोई छोटे मोटे फूलों के, दूसरे फूलों के भी उन्होंने शहद उठा लिया और वो 5 से 10% मिक्स है इसके अंदर, लेकिन ज्यादा परसेंटेज किस चीज की है कि किक्कर के या अजवाइन की, तो वो 90% तो उसी के फूल का, तो वो उसी का ही माना जाएगा और वो स्वाद भी उसी का ही आएगा, उसमें से गुण भी उसी के आएंगे। थोड़ा 5-10% वो उसमें से दूसरे का मिक्स हो गया तो वो उसकी वैल्यू नहीं रखता वो उतने। और यही वजह होती है, कहीं शायद ऐसे होते हैं कि वो नीचे से जमे हुए दिखते हैं आपको, ऊपर कई दफा मान लो ये भी सरसों चल रही, सफेदा भी चल रहा है, सफेदे का जमता नहीं है और सरसों का जमता है। अरे जब सरसों वाला तो जम जाएगा, सफेदे वाला लिक्विड रहेगा ऊपर, ये इसलिए वो अलग अलग ऐसे कर, ऐसा नहीं है। वो तो हम प्रॉपर उस एरिया में जाते हैं, उसी का शहद आता है, उसी का हम फिर अलग रखते हैं। फिर तो हमारे पास लगभग 27 तरह के शहद हैं अलग अलग फूलों के, है ना। और वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, झारखंड से बन तुलसी आता है, क्रंज आता है, बिहार से लीची आता है और रेड हनी आता है। इस तरह देखो कहाँ कहाँ से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, लाहौल स्पीति से आते हैं, अलग अलग एरिया से अलग अलग शहद आते हैं। लाहौल स्पीति भी कौन सा आता है? मैडम लाहौल स्पीति का तो सुनोगे रह जाओगे। स्पीति में अभी जून में लास्ट में जाकर के ना एकदम पिघल जाती है सब बर्फ, और उसमें से झाड़ियां छोटी छोटी सी वो उगती है फिर पहाड़ियों पे, और वो ऐसी लगती है जैसे अजवाइन के पौधे हो, मेडिसिन टाइप की, और वो फूल छोड़ती है फिर, है ना। तो वो अजवाइन का है ना, हम उसको है ना अजवाइन का शहद बोलते हैं। और उसके भी बाद फिर अगस्त के आधे अगस्त में जाकर के फिर एक इतने पेड़ छोटे छोटे जैसे एप्पल के पेड़ होते हैं, एप्पल नहीं है वो असल में, वहीं का ही वो पेड़ है, और कोई पेड़ नहीं है बल्कि वहां उस इलाके में। अब उससे देखो सभी फूल से आते हैं, लेकिन वो टहनियों से आता है। हाँ, उसको हम ड्यू हनी बोलते हैं, हनी ड्यू। हनी ड्यू क्यों? क्योंकि वो एक ओस, ड्यू मींस ओस। असल में होता क्या है, उसको एक कीड़ा लग जाता है उसकी शाखाओं को, एक इतनी मोटी से ऊपर शाखा नहीं है उसकी, उसको एक कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा उसमें से रस चूसता है। अब वो रस चूसता है उसमें से, अब वो उसमें डंक मारता है तो उसमें सुराख हो जाते हैं, और वो रस जो है ना नीचे टपकता है,
कुछ पत्तों में गिर जाता है, नीचे पत्थर है, पत्थर में गिर जाता है, दिन निकलता है, मधुमक्खियां उड़ती हैं तो मधुमक्खियां उसको चाट के ले आती हैं, उस शहद को। शहद है वो हनी ड्यू, सिर्फ है ना, लगभग 3 चीज से हनी ड्यू मिलता है जो फूलों से नहीं आता। एक तो वो स्पीति से, एक केरला में रबड़ के पेड़ होते हैं, है ना, उसको भी फूल से नहीं आता शहद, उसकी भी है ना पत्तों से आता है। इसी तरह कपास का भी पत्तों से आता शहद। तो ये हनी ड्यू की श्रेणी में आते हैं शहद। और कोई किसी का सवाल? हाँ जी, कोई बात नहीं। सर जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें हनी मतलब वो जैसे इसमें ज़्यादा शुगर होती है तो फिर उनके लिए अलग है। हाँ सुनो, एक बताऊं बात। शुगर पेशेंट होता है ना जो, वो क्या करता है ज्यादातर, है ना, शुगर फ्री गोलियां खाने शुरू कर देते हैं। वो चाय कॉफी पीनी है, दूध पीना है तो शुगर फ्री गोली, लेकिन वो केमिकल है, वो नहीं खानी चाहिए। उससे बेस्ट है हनी डाल दो। जब भी शुगर पेशेंट को मीठा खाने का तलब उठती है तो उसको हनी दे दो। हनी में भी फिर सभी हनी नहीं, जैसे ये कि जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है वो मत दो। जिसमें फ्रुक्टोज, जैसे कि अजवाइन है, जामुन का शहद है, नीम का भी है हमारे पास शहद, तो इस तरह के शहद जो है वो दो। उसको हेल्थ पे भी बेनिफिट करेगा क्योंकि वो हेल्दी होता है शहद, और शुगर है ना फ्री गोलियां तो हेल्दी नहीं होता, तो केमिकल होता है। कम से कम उसको हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है उसका, और उसका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएगा। शहद शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। और मैंने तो अपने पिताजी की शुगर ही कंट्रोल करती थी शहद से, है ना, लहसुन और ये सब अदरक उदरक डाल के, शहद डाल करके। ठीक है, चलो और कुछ नहीं तो फिर बंद करें, ठीक है, ओके, थैंक यू। Enriching and thought-provoking. कुछ को कुछ बिजनेस आइडियाज भी मिले होंगे। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट विवेक मैम जस्ट टू से फ्यू वर्ड्स। हाँ जी बच्चों, सर से कुछ सीखने को मिला आपको? आपको कुछ नई नॉलेज भी मिली होगी मधुमक्खियों के बारे में, है ना, और साथ साथ कुछ बिजनेस आइडियाज भी मिले होंगे। कुछ ना कुछ आप सबके मन में भी चलते रहते हैं फ्यूचर को लेकर कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक बिजनेस को डेवलप करना है, किस तरह से हमने उसकी लाइसेंसिंग करनी है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, सर का प्रोडक्ट क्या है? हनी है। आपका प्रोडक्ट कुछ और हो सकता है, जैसे सर ने फूड के लिए बताया कि FSCCI की, हाँ, FSSI की जो लाइसेंसिंग लेनी होती है, ऐसे ही हर तरह के प्रोडक्ट में आपको लाइसेंसिंग मस्ट है, लेकिन बशर्ते कि वो प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, सर ने ये भी बताया कि मैं सोल ट्रेडरशिप में था और फिर मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ा कंपनी में। इट कैन बी अ पार्टनरशिप, इट कैन बी अ कंपनी। ठीक है, तो आप वो भी आपको समझ आया होगा। GST नंबर के बारे में भी समझ आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात सर ने टर्नओवर पर बोला। आज सर ने बताया कि मेरा टर्नओवर 6 करोड़ का है, जो एक आम जो है स्टूडेंट जो कि बाद में जॉब्स में जाता है उतना तो कभी भी नहीं मिल पाता उसे। सुन रहे हैं और सबको? तो आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज्यादा जोर दे रहा है, तो आप सबने समझा, सुना, और आई थिंक आप लोग सब जो है फ्यूचर में इसे ऑप्ट करेंगे। एंड थैंक यू सर, आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी, आपका बिजनेस भी हमें बहुत अच्छा लगा, और जो इनके पर्सनल एक्सपीरियंस, देखो बेटा, हमने खाली इनके बिजनेस के बारे में नहीं सुना, हमने इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी बहुत कुछ लर्न किया है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है इनको, आप भी बताइए, थैंक यू करना है नहीं करना? ऐसा है ना, तो थैंक यू करो सब बच्चे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। Thank you, ma'am. As we approach to the conclusion of today's session, I extend my heartfelt thanks to our respected dignitaries, resource person, faculty members, organizers, IIC student council members, and enthusiastic participants for making this academic endeavor a great success.
May the ideas shared today ignite innovation, encourage research-driven thinking, and empower us to translate knowledge into impactful action. With this, we finally conclude the session. Thank you all for your gracious presence. Have a wonderful and blessed day. Thank you. And Richie for